टाइम है, द टाइम इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग दैट डिटरमाइंस वेदर यू आर द विनर और वेदर यू आर लैगिंग बिहाइंड। टाइम सबसे महत्वपूर्ण। हेलो एवरीवन, आपका प्रिपरेशन जरूर अभी फुल फेज में एकदम चल रहा है और इस प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए आज का मैं एमडी शाहिद, currently pursuing first year MBBS from IIMS Kalyani. So basically guys, you all are participating in a race. Yes, you know your destination, right? You know basically in which stream you are aiming about. Maybe it the medical stream or engineering stream, or it can be any general stream. Now in this race, you are the driver. You have the vehicle. What is the vehicle? Your study material. That is you are studying right now. So to move the vehicle, what you need? Force. What will give it the force? The fuel. What is the fuel? The fuel is the passion. जो जुनून, वो जो जुनून है ना, जो आपको मोटिवेट कर रहा है, वो है fuel. Now, if I say what is the rate determining step in this race, तो केमिस्ट्री से बहुत सारे लोग जानते हो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इस रेस में क्या आपका रेट डिटरमाइन करता है? वो है टाइम। वो टाइम है, द टाइम इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग दैट डिटरमाइंस वेदर यू आर द विनर और वेदर यू आर लैगिंग बिहाइंड। टाइम सबसे महत्वपूर्ण चीज है। So basically in this video we are telling about how to effectively manage your time in this chronically shorted period. एग्जाम में टाइम मैनेज करना एक और चीज है, और इस टाइम में कैसे आप हर रोज आपके टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो एकदम कुछ भी वेस्ट ना करके, वो एक और चीज है। So basically you have to utilize your time in proper pace and for that I am here. अगर मैं लोकी से एक डायलॉग उधार लूं, वो कुछ गलत नहीं होगा। The time is running out, right? So here we go. So पहले हम सबने एक रूटीन तो सही कर लिया है ना, कि हमारा रूटीन ये है, हम सुबह में ये करेंगे, हम दोपहर में ये करेंगे, at night we'll do this. But you should focus that you are not only just looking at the quantity of time you are studying. You should see the quality of time you are studying. इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो कैसा होगा? हमें किसी को रात में नींद आ सकता है, हमने किसी को सुबह में पढ़ना अच्छा लगता है। एज फॉर मी, आई एम ए नाइट बर्ड, सीरियसली। मतलब आप रात को हमको जितना बोलोगे पढ़ने के लिए हम पढ़ लेंगे, पर सुबह में जितना भी हम पढ़ेंगे हमारा इफेक्टिवनेस है ओनली 5 to 10%। तो यू पीपल, दोज हु आर कंफर्टेबल इन नाइट स्टडीइंग और दोज हु आर कंफर्टेबल इन स्टडीइंग इन द अर्ली मॉर्निंग, डू इट। लोग जो बोल रहे हैं वो मत सुनो अभी। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज सुनना, जरूर सुनना। 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा वो बात सुनना। अभी आप जिस टाइम पे कंफर्टेबल हो, जिस टाइम में आपका टाइम का इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा है, उसको आपको प्रायोरिटी देना चाहिए। You should not prioritize the quantity of time. You should prioritize the quality of time. If you are studying 13 hours a day, that is enough. But if we qualify the time, and if it becomes only 3 hours, then what are you doing at the 10 hours? You are studying, but that is the study is getting no effectiveness in that time. So you have to qualify your time. So you have to believe that quantity is not important. The quality of time that you are spending in your study is the most important thing. Now टाइम का तो क्वालिफिकेशन हो गया। Now अब हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए एक प्रॉपर रूटीन। इस रूटीन को पहले फिजिबल होना चाहिए। मतलब हम कोई ऐसा रूटीन नहीं बनाएंगे कि हम 1-2 दिन तो रूटीन कर लिए, तो 1-2 दिन वो रूटीन पे एकदम लाइन बाय लाइन पूरा रूटीन मुताबिक पूरा चले, पर उसके बाद मतलब पूरा ड्रेनिंग आउट हो गया, वो रूटीन मुझे बहुत ही टॉक्सिक लग रहा है अभी। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फिजिबल रूटीन बनाना चाहिए हमको। कैसे? इस रूटीन पे दोनों चीज आपको सबसे ज्यादा मायने रखता है। What are the 2 things? The first thing is sleep and the second thing is time for test and test analysis. Now at first I will just discuss about the routine for sleep. In your time you have to study a lot. It is not about studies, but you have to remember them, memorize them. To remember them, you have to get a sound sleep at least 6 hours a day. Those who are just thinking that I will study for only 3 to 4 hours and the remaining 2 hours from 6 hours, I will indulge in studies, that will not get effective in the long run, bros. In the long run, your energy will drain out. So at first you should get 6 hours of sleep, not 7 hours, not 8 hours. 6 hours of sleep is really effective and is really enough. For the 2 years from 11, 12 up to my entrance exams, I really slept for regularly 6 hours in a day. Even if I have 4 hours sleep in night, I used to sleep 2 hours in day.
So you have to compromise all of your time so that you can have 6 hours of sleep in a day. And the next comes the time for test and test analysis. You have to give more and more number of tests, and not you should give the test and you are getting the score and you are getting happy. If you don't analyze the test, don't analyze your mistakes, it is not becoming that much effective that you are thinking about. So you should give test and you should analyze it. For this the test is about 3 घंटे का, और टेस्ट एनालाइज करने के लिए आपको 2 घंटे चाहिए, क्योंकि 2 घंटे में आप क्या करोगे, जो टेस्ट में आपका गलती हुआ वो चीज़ आप देखोगे, जो आपने गेस करके किया वो आप एनसीईआरटी से देख सकते हो, और जो चीज़ मतलब दिमाग में कुछ नहीं है वो आपको पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए 2 घंटे, तो हो गया 5 घंटे, मतलब 5 घंटे और 6 घंटे, 11 घंटे आपको सिर्फ इन दोनों चीज़ के लिए रखना चाहिए। एंड द रेस्ट ऑफ द 13 आवर्स यू कैन मॉडिफाई। ओके, अब रूटीन तो कर लिया, पर किसमें कितना टाइम हम दे सकते हैं? देखिए, in NEET exam, if I tell about only NEET, 180 marks for physics, 180 marks for chemistry, and 360 marks for biology. If you are very much good in biology and if you are neglecting it, you are getting in the wrong direction. Because in biology, this is the most scoring area. You have to get too much mastering about it that you cannot lose a mark in biology. So you have to focus regularly on biology, some numerical data, some concepts, some MCQs. You have to go through regularly so that you cannot forget anything about biology. About physics, chemistry, some of us have a strength point in physics or some of us has a strength point in chemistry. But हमको इन दोनों को simultaneously पढ़ के जाना है, simultaneously इन दोनों को हमको रिवाइज करना है, क्योंकि इसमें भी 180 मार्क्स है, इसमें भी 180 मार्क्स है. There is no biasness, that physics will give me more marks or chemistry will give me more marks. You have to study properly the both of the subjects, so you can't neglect anything. हमको एक टेंडेंसी है कि हम बायोलॉजी को बहुत निगलेक्ट करते हैं कि बायोलॉजी तो हो जाएगा, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे, पर ये गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बायोलॉजी में अगर आपका एक या फिर 2 मिस्टेक हो जाए ना, तो वो रैंक डिटरमाइनिंग हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री पे मतलब अगर आपका मार्क्स सेम आ जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का मार्क्स पहले नहीं देखा जाता, पहले देखा जाता बायोलॉजी का मार्क्स. सो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको तीनों चीज साइमल्टेनियसली पढ़ना चाहिए. बायोलॉजी में बहुत स्ट्रांग हो, ओके, कम पढ़िए थोड़ा, पर पढ़िए, रेगुलरली पढ़िए. कीप दैट इन योर डेली रूटीन रेगुलरली, not just focusing physics or chemistry. This is not effective. It is not effective. You have to study biology and all other physics chemistry concepts in that. And if I tell about mathematics, जेई के लोग के लिए बोल रहा हूँ, उसमें मैथमेटिक्स ना बहुत टफ है. तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मैथ करते हैं, और बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि मैथ बहुत टफ है, मैथ को छोड़ के फिजिक्स केमिस्ट्री करते हैं. ये भी नहीं करना चाहिए. आपको थोड़ा थोड़ा टाइम डिवाइड करके तीनों की साइमल्टेनियस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए. आप मॉक दे रहे हो ना रोज, वो मॉक से आपको देखना चाहिए रेट्रोग्रेसिवली आप कैसे पढ़ सकते हैं. पहले हम पढ़ते हैं प्रोग्रेसिवली, मतलब पढ़ लिया उसके बाद मॉक दिया. नहीं, मॉक दो, मॉक में जो आपको नहीं आया उसको रेट्रोग्रेसिवली पढ़ो. तो इससे क्या होगा, आपका हर दिन हर चीज आपका रिवाइज होते जाएगा, तो आप कुछ भी चीज नहीं फॉरगेट करोगे. सो डेली आपको सब कुछ पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए पर सब पढ़िए. नाउ एट लास्ट, the most vital point is don't lose your time in distractions and in overthinking. Distraction कैसा, मतलब बहुत पढ़ लिया, मतलब 3 घंटा एकदम पूरा पढ़ा, उसके बाद क्या मन चाह रहा है, थोड़ा रील्स देख लेते हैं, थोड़ा गॉसिप कर लेते हैं दोस्तों के साथ. नहीं, अभी नहीं. उसके लिए प्लेंटी ऑफ टाइम्स आपको मिलेंगे एग्जाम के बाद. इस वक्त उस टाइम को, जो आपको 5 मिनट 10 मिनट टाइम भी मिल रहा है ना, उस टाइम को भी आप यूटिलाइज कीजिए आपके स्टडी के लिए, आपके मेहनत में. अगर आप उसको इन्वेस्ट अब कीजिए तो उसका जो इंटरेस्ट आप पाएंगे ना, वो आपका दिल जीत लेगा. सो दैट्स व्हाई डोंट लूज योर टाइम इन डिस्ट्रैक्शंस एंड इन ओवरथिंकिंग. डोंट ओवरथिंक टू मच. आप तो पढ़ रहे हो, आपके अंदर तो वो जुनून है, वो पैशन है, वो शिद्दत है. आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप ये जरूर कर सकते हो. डर लग रहा है, डर नेचुरल है. जिसको डर नहीं लगता वो अननेचुरल चीज है. सबको डर लगता है, पर उस डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना. तुम उस डर को जीत सकते हो. थोड़ा सा डर तो सबको ही लगता है ना, क्योंकि ये तुम्हारे मतलब जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम तो नहीं है, पर वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एग्जाम है. तो डर तो लगेगा, पर उस डर को एंजॉय करो अभी, क्योंकि ये डर सिर्फ एक बार ही लगेगा, इस बार, और उसके बाद सिर्फ एंजॉयमेंट. So that's why don't drain yourself in distractions and in overthinking too much.
So this is all about the tips and tricks and hacks of time management that I have to share with you guys. If you have any queries or any questions related to this topic, feel free to ask me in the comment section. I will definitely answer your queries. So this is all from my side. If you are new in our channel, kindly like and subscribe it. Thank you.